Hi everyone. Let's start O-level paper 1 multiple choice question October November 2024 variance 12. Uh, let's start with the first question. Helium is a gas at RTP, argon is a gas at RTP, and both the gases are mixed in a closed container. So obviously, if both of them exist in gaseous state, which means they exhibit random motion. All right, at room temperature and pressure. So at RTP, both the gases exhibits random motion. And so what happens when two gases are in the container? Obviously, these gases are mixed together because of random motion. So argon and helium atoms becomes evenly mixed throughout the container, even though they have different masses. Exactly. That's the right option. All right. This might be the right answer because whenever two different gases are mixed together in a closed container, they will have Brownian movement, also called random motion. And so they will mix together in the closed container. Let's talk about option B. Argon and helium atoms both move towards the bottom of the container. The argon atom settles more quickly because they are larger and heavier. So most important statement is settle. Gases कभी भी settle नहीं होती क्योंकि वो हमेशा random motion में exist करती हैं. Can't settle. So option B is incorrect. Argon and helium atoms both move towards the bottom of the container. The helium atom settles more quickly. Again, helium is a gas, cannot settle. इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत. गैसेस कभी सेटल नहीं होती. गैसेस जो है वो हमेशा रूम टेम्परेचर प्रेशर पे रैंडम मूवमेंट करती हैं, रैंडम मोशन शो करती हैं, इसलिए वो सेटल नहीं हो सकती. लेट्स टॉक अबाउट डी. ऑप्शन डी देख लेते हैं. Argon atoms move towards the bottom of the container because they are heavier. Helium atoms moves to the top of the container because they are lighter. It has nothing to do with the heavier and a lighter thing because जब gases जो हैं वो room temperature के ऊपर random movement show करेंगी तो obviously वो एक दूसरे के साथ mix करेंगी, वो settle down नहीं होंगी. ठीक है ना? So these gases will not stratify significantly due to their random motion, which means D also incorrect, and therefore we'll go for the option A. Okay. Now the next question is question number 2. Substance X has a simple molecular structure. तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको. इस टॉपिक में डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन, ये चार जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं. इनको छोड़ के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. वेयर इज वाई हैज अ जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर. तो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर में डायमंड है, ग्रेफाइट है, सैंड है, सिलिकॉन है. ठीक है. विच रो इज करेक्ट? सो एक्स इज सिंपल मॉलिक्यूलर. तो सिंपल मॉलिक्यूलर सिर्फ एलिमेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि ओनली लिखा है तो ओनली तो नहीं है. सिंपल मॉलिक्यूलर तो एलिमेंट नहीं होता. इट हैज टू बी मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल तो होना चाहिए. ठीक है ना. इफ इट इज मॉलिक्यूलर मीनिंग इट कैन नॉट बी एन एलिमेंट, राइट? विच इज वाई ए और बी ऑप्शन गलत हो गए. कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन सी एंड डी. सी पढ़ लेते हैं. एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, ये मोस्ट लाइकली ऑप्शंस हो सकते हैं दोनों. वाई जो है वो जाइंट है तो जाहिर सी बात है ये कंपाउंड भी हो सकता है जैसे SiO2, ये एलिमेंट भी हो सकता है जैसे ग्रेफाइट और डायमंड, राइट? सो इसका मतलब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. क्वेश्चन 3.
द डायग्राम शोज एन एटम ऑफ एलिमेंट Z। ये एक एलिमेंट Z है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में 15 न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किए। और जाहिर सी बात है ये एलिमेंट फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल होगा। और अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है। तो इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से रिप्रेजेंट हुए हैं, इनको अगर मैं काउंट कर लूं तो मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम हो जाएंगे। सो लेट्स काउंट इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल कंटेन 8 और थर्ड शेल कंटेन 3। सही है। सो विच symbol for element Z is correct? So technically we have 13 electrons, which means we have 13 protons, we have 15 neutrons. So if I'll add these two values, I'll get the nucleon number. न्यूक्लियॉन नंबर को हम मास नंबर भी कहते हैं। तो ये 15 प्लस 13 है, सो इट्स गोइंग टू बी 28। 28 कहाँ लिखा है ये चेक कीजिए। 28 जो है वो ZA में लिखा हुआ है, 28 B में नहीं है, B गलत हो गया। 28 A में है और गलत जगह पे लिखा हुआ है, इसकी पोजीशन गलत है। न्यूक्लियॉन नंबर आपको पता है ना, इस तरह से लिखा जाता है 13 प्रोटॉन्स एंड 28 न्यूक्लियॉन नंबर, ये सिंबल होगा लिखने का। तो न्यूक्लियॉन नंबर हमेशा यहाँ होता है, प्रोटॉन नंबर हमेशा नीचे होता है। एग्जामिनर ने ये गलत पोजीशन दी हुई है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग, बी भी रॉन्ग। अब कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन सी एंड डी। आई बिलीव सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और 28 न्यूक्लियॉन नंबर है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, हमारे इससे मैच कर रहा है। इधर 15 प्रोटॉन्स कह रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। प्रोटॉन्स 15 नहीं है, 15 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Question number 4. A sample of element Q contains two isotopes. Remember, it has two isotopes, which is why you have two different peaks, lines in the spectrum. इसको हम कहते हैं spectrum. इस डायग्राम को हम कहते हैं spectrum. So इस spectrum में हमारे पास दो lines हैं, इसका मतलब दो isotopes हैं। तो number of lines represents the number of isotopes, ये याद रखिएगा। The diagram shows the relative abundances and relative masses of the two isotopes. What is the relative atomic mass of this sample of Q? So मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, याद है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप दिया हुआ एग्जामिनर ने 20 इनटू अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। इसकी अबंडेंस एग्जामिनर ने आपको कितनी दी हुई है, 1, इंटू 1 कर दीजिए, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप एग्जामिनर ने दिया हुआ है 22 और अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप जो है वो एग्जामिनर ने दी हुई है 5 डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। टोटल अबंडेंस हो जाएगी आपके पास 6। तो यहां से आपके पास कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, 20 टाइम्स 1 प्लस 22 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 6, so it's 21.66। तो 21.66 का मतलब ये हुआ कि मैं क्लोज ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। 21.66 इज बेसिकली 21.7, so 21.7 is going to be D. So D is the right answer. Which statement about electrical conductivity is correct? Okay. Covalent compounds such as glucose conducts when molten or dissolved in water. पहली बात, ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व होता है लेकिन आयोनाइज नहीं होता। सही है। और जब आयोनाइज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, ग्लूकोज क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है इसलिए वो मोल्टन फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट इन मोल्टन और कैन नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर। सो इसलिए ऑप्शन है इनकरेक्ट। Dilute acid such as sulfuric acid conducts because all the ions are free to move.
ये बात किसी हद तक मुझे ठीक लग रही है, बिकॉज ऑल एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट and electrolytes conduct electricity because of the presence of free mobile ions. Let's talk about C. Ionic compounds such as sodium chloride conducts due to movement of electrons. Due to movement of electrons नहीं है, in fact due to movement of ions है. ठीक है, ये गलत. Metals such as copper conducts due to movement of positive ions. तो याद रखिएगा, पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट नहीं होती है, मूवमेंट हमेशा होती है इलेक्ट्रॉन्स की. तो ये भी गलत, एंड राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. Which substance is not malleable and conducts electricity by the movement of electrons through a lattice of atoms? Not malleable. तो जाहिर सी बात है, और वो कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे. तो सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. Solid sodium chloride cannot conduct electricity. तो ऑप्शन डी भी गलत. Now, question is ke gold and graphite both conduct electricity because of the presence of movement of electrons, right? But इसमें से malleable कौन सा नहीं होता? ग्रेफाइट जो है वो malleable नहीं होता, I believe. ग्रेफाइट इज नॉट malleable. गोल्ड जो है वो तो malleable होता है, उसकी शीट्स बना लेते हैं, उसकी बार्स बना लेते हैं, उसकी हम वायर्स बना लेते हैं, उसको हर शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसका मतलब ये malleable होता है. राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, बिकॉज ग्रेफाइट जो है वो malleable नहीं होता और वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथीन. इथीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास C2H6, सॉरी C2H4. इस C2H4 को हम देख लेते हैं. ये 12 टाइम्स 2 है प्लस 1 टाइम 4 है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 बिकम्स 28. सही है. सो 12 टाइम्स 2 ट्वाइस द एयर ऑफ कार्बन, ये आ गया. 4 टाइम्स एयर ऑफ हाइड्रोजन, 4 टाइम्स एयर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये स्टेटमेंट आ गया. दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. ऑलराइट. What is the relative molecular mass of N2O? N2O का molecular mass तो बहुत ही आसान है. mR of N2O हमें find out करना है. Nitrogen is 14 multiply by 2 plus oxygen is 16, so it's 28 plus 16. 28 plus 16, 44. So 44 is basically C. C is going to be the right answer. Okay, let's move on to the next page. Next question. Question number 9. Which contain the greatest mass of oxygen? My goodness, that's a lot of data. So जिसके मोल ज्यादा होंगे, I believe उसके मास भी ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि मोल्स is always equals to mass upon mR. तो भाई अगर मास ज्यादा, मोल ज्यादा, मास कम, मोल्स कम, तो अगर मुझे ग्रेटेस्ट मास देखना है तो इसका मतलब मोल्स भी ज्यादा होने चाहिए. तो मुझे यहाँ से मोल्स डिटरमिन करने. एल्यूमिनियम नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है. तो अगर ये 1 मोल है और ये 3 मोल है और ये 0.2 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0.6 मोल्स. 0.2 multiplied by 3 is basically 0.6 moles. Hold on, 0.2 into 3 is going to be 0.6 moles. सही है. ऑप्शन बी देखो.
K2SO4 कह रहे हैं, K2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो अगर ये 1 मोल है और ये 4 मोल और ये 0.3 मोल है, सो ऑब्वियसली ये आपके पास कितना हो जाएगा, 0.3 टाइम्स 4, 1.2 मोल्स। सही है। फिर है आपके पास सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसमें भी आपके पास 3 ऑक्सीजन एटम है, ये 1 मोल, ये 3 मोल। अगर आपके पास 0.4 मोल्स हैं तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 0.4 इंटू 3 इज 1.2 मोल। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये है आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, दिस मैग्नीशियम कार्बोनेट हैज 3 ऑक्सीजन एटम्स और ये 1 मोल है, ये 3 मोल है। अगर ये 0.5 मोल है तो बताइए ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। सो 0.5 इंटू 3 इज गोइंग टू बी 1.5 मोल। तो सबसे ज्यादा मोल्स जो हैं वो ऑब्वियसली आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट में मिले हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा मास मिलेगा। अब आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें 16 से सबको, ठीक है। जब आप 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मास मिलेगा, सबसे ज्यादा मास ऑप्शन डी के अंदर आएगा ऑक्सीजन का, ठीक है, क्योंकि उसके मोल सबसे ज्यादा है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। कंपाउंड जी, होल्ड ऑन, मैंने गलती तो कोई नहीं की इसमें। एक मिनट, 1.6 इंटू 16, 1.2 इंटू 16, 1.5 इंटू 16। मैंने कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं की। नहीं, मैंने कैलकुलेशन में तो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं की हुई। 1:3, 1:4। आई थिंक माई आंसर इज राइट, बिकॉज जितने ज्यादा मोल होते हैं उतना ही ज्यादा मास होता है। ग्रेटेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन कह रहे हैं, तो मैंने ऑक्सीजन ही यहाँ पर लिया है। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, आई गॉट माय मिस्टेक, आई गॉट माय मिस्टेक। ये देखो, यहाँ मैंने 3 ऑक्सीजन एटम लिखा है, ये टेक्निकली 3 नहीं है, ये 3 है और ये भी 3 है। तो टेक्निकली ये कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, ये 6 ऑक्सीजन एटम हो गए, ठीक है। माय गुडनेस, ये देखते हैं। होल्ड ऑन, एक मिनट रुकें। 6 ऑक्सीजन एटम देखते हैं, वैसे तो 9 बनते हैं, ये 3 × 3 9, बट मैं 6 से कैलकुलेट करके देखता हूँ। होल्ड होल्ड ऑन, 0.2 इंटू 6 इज गोइंग टू बी, ये 9 ही होगा, 9 ऑक्सीजन एटम। 0.2 इंटू 9 इज गोइंग टू बी 1.8, या ये 1.8 मोल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मोल सबसे ज्यादा हैं, तो इसका मास भी सबसे ज्यादा होगा। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन कैलकुलेशन। देखो मुझसे भी एरर हुआ ना, मैंने ओवरलुक कर दिया कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 × 3 becomes 9, तो मैंने यहाँ 3 लिखा है इंस्टेड ऑफ 9, ठीक है। सो आई थिंक 9 का आंसर ए होना चाहिए। कंपाउंड जी कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली।
compound Z contains 48.65% carbon and 8.11% hydrogen by mass. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और 100 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो चलें करते हैं कैलकुलेशन। जगह वैसे हमारे पास कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है इसमें। सो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ। सही है, इसको भी यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि आपको बात तो समझ में आ गई है। एंड वी नीड स्पेस, सो मुझे कार्बन चाहिए। कार्बन है मेरे पास 48.65, इसको मैं डिवाइड करूंगा 12 से तो मुझे मोल्स मिलेंगे। हाइड्रोजन मेरे पास है 8.11, इसको डिवाइड करूंगा मैं 1 से। और 48.65 प्लस 8.11 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 56.76। सो 100 minus 56.76 becomes 43.24। ये ऑक्सीजन हो गया आपका। इसको डिवाइड कर देंगे 16 से। डिवाइड करें इसको 16 से तो आपके पास आएगा 2.705 7025 8.11 48.65 डिवाइडेड बाय 12, सो ये हो जाएगा 4.05 डिवाइडेड बाय जो लीस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर दीजिए 2.7025, ये भी 2.7025 और ये भी 2.7025, ये 1 हो जाएगा। Divided by 2.7025, so it's going to be 1.5 और 8.11 divided by 2.0725, it's going to be 3.9 which is going to be 4। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 से ताकि वैल्यू जो है वो मेरे पास होल नंबर में आए। तो ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा H8 और ये हो जाएगा O2। तो C3H8O2 is the empirical formula of compound Z। तो C3H8O2 कहाँ लिखा है? Oops, ये तो कहीं भी नहीं लिखा। Again I made some error। 8.11 divided by 2.7025, ये 3 है। My bad, कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेटर में वैल्यू गलत प्लग इन हुई हुई है। 3.00 है ये। सो टेक्निकली जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये C3H6O2 मिलेगा। तो C3H6O2 B है, B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बेटा कैलकुलेशन में ना मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है? मैं कैलकुलेटर पे वैल्यूज प्लग इन कर रहा हूँ बट क्योंकि मैं बहुत स्पीड से काम कर रहा हूँ इसलिए वो वैल्यूज समटाइम्स गलत हो रही हैं। तो कैलकुलेशन बहुत आराम से, बहुत तरीके से कीजिएगा। Next is which fertilizer contain the highest percentage by mass of nitrogen? We did that question in the class। MR of तमाम कंपाउंड्स दिया हुआ है तो आपने सिंपल अमोनियम नाइट्रेट के लिए काम करना है। नाइट्रोजन को आप 14 को मल्टीप्लाई करें 2 से और इसको डिवाइड करें आप 80 से, इंटू 100 करें। सो आई थिंक ये 35% आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। इसके लिए आप नोट करें 14 टाइम्स 3 और इसको डिवाइड कर दीजिए इसके MR से विच इज 149 इंटू 100 करें। So 14 times 3 divided by 149 into 100 is going to be 28.1। ये 28.1 है। अब इसके लिए करते हैं कैलकुलेशन। 14 को मल्टीप्लाई करो 2 से क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम है फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाय द MR which is 132 into 100। 14 times 2 divided by 132 into 100 is going to be 21.2%। नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करो 2 से, डिवाइड करो MR से which is 60 into 100। so ये हो जाएगा 14 times 2 divided by 60 into 100 is going to be 46.6। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन है वो D में है, which means D is going to be the right answer for you।
Okay, so question number 11D. 12. An electrolytic cell is shown. ये प्लैटिनम का एनोड है और ये प्लैटिनम का कैथोड है और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. सो ऑब्वियसली यहां पर रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस और यहां पर रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस. ओके, let's talk about the statements. Which statement is correct? Electrons move from cathode to anode in the external circuit. External circuit में electrons की जो movement है वो anode to cathode होती है. ये गलत हो गया. ठीक है. Hydrogen ions gains electron at the anode. तो भाई at the anode नहीं, at the cathode, because at cathode reduction takes place. Okay, ये भी गलत. Next is, in the electrolyte, positive ions move to the cathode and negative ions move to the anode. ये बात बिल्कुल सही है. Cat ions goes towards cathode and anions goes towards anode. That's what we have done in the class. So C is going to be the right answer. But D भी देख लेते हैं एक मरतबा. The hydroxide ions in the electrolyte move towards cathode. Hydroxide ion जो है वो negatively charged ion है. तो अगर ये negatively charged ion है तो जाहिर सी बात है ये negatively charged cathode पे discharge नहीं हो सकता क्योंकि repulsion करेगा. तो it has to be anode क्योंकि anode positively charged होता है. Okay, सॉरी, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. सो क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को अट्रैक्ट करता है. कैथोड खुद नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को अट्रैक्ट करता है. एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास बाय द वे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. An aqueous mixture of copper to nitrate and silver nitrate is electrolyzed with pure copper electrodes. Which ionic half equation describes the change occurring at the anode? सबसे पहली बात कि आपके पास प्रोसेस हो रहा है कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट का मिक्सचर है और प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड एंड एनोड बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर. Which ionic equation describe the change occurring at the anode? आपको पता है ना कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है. ठीक है. सो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो जाहिर सी बात है अगर एनोड कॉपर का बना हुआ है तो वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आई बिलीव ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. 14. What is the disadvantage of using hydrogen oxygen fuel cell to power a car? Gasoline or petrol is a non-renewable source of energy. Gasoline and petrol. No, it's incorrect. Next is hydrogen tank may split in an accident leading to an explosion. बिल्कुल सही बात है because hydrogen is a flammable gas. तो अगर एक्सीडेंट होता है तो जाहिर सी बात है गैस जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगी, टैंक जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगा. सो बी सीम्स टू मी इज अ राइट ऑप्शन. लेकिन सी को भी देख लेते हैं. The product of the reaction between hydrogen and oxygen is toxic. That's absolutely incorrect because steam बनता है and steam is not the pollutant. Steam is the product which is not a pollutant. ठीक है. उसके बाद ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर. बात तो ठीक है कि हम ऑक्सीजन को एयर से लेकर आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं आपसे इसलिए ये भी इनकरेक्ट एंड देयरफॉर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है. वैसे ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हम ऑक्सीजन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से हासिल करते हैं. बट मसला ये है कि एग्जामिनर डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं. ठीक है ना. तो डिसएडवांटेज तो नहीं हो सकता ये, which is why B is going to be the right answer. When chemical reaction X takes place, thermal energy is given out. Thermal energy is given out, इसका मतलब reaction exothermic है.
If energy is given out from system to surrounding, then it means reaction is exothermic. Okay. तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, क्योंकि ये दोनों एंडोथर्मिक है. नाउ करेक्ट ऑप्शन एग्जिस्ट आइदर कैन बी सी और डी, लेकिन हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. वो कह रहे हैं मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. मैंने क्लास में कहा था कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड देन एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म, देन रिएक्शन इज सेड टू बी एंडोथर्मिक. एग्जामिनर ने यहाँ एक्सोथर्मिक लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डी, क्योंकि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मोर एनर्जी इज रिलीज व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन and less energy is absorbed in breaking the bond. So that is the statement we have given you in the class और ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, ये एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो एंडोथर्मिक का है. एक्सप्लेनेशन एंडोथर्मिक की है. Which is why इस एक्सप्लेनेशन को हमने क्रॉस कर दिया, क्योंकि एक्सोथर्मिक कह रहा है. Which statement about a physical change is correct? Physical change is impossible to reverse. It can. आप लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करते हैं, फिर आइस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. सो इट इज पॉसिबल. ठीक है. इन अ फिजिकल चेंज अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस में चेंज. बिल्कुल सही बात है, अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो जाता है. मैंने आपको क्लास में एक चीज पढ़ाई थी. आयोडीन होता है सॉलिड, ब्लैक कलर का होता है. आप इसको हीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन गैस में, क्योंकि सबलाइम कंपाउंड होता है, और आयोडीन गैस जो है वो पर्पल होता है. तो अपीयरेंस तो डिफरेंट हो गई ना. विच मींस बी कैन बी द राइट आंसर. सी भी पढ़ लेते हैं. न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इन अ फिजिकल चेंज. गलत. व्हेनेवर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ये फिजिकल चेंज नहीं होता, ये केमिकल चेंज होता है. ठीक है, सो ये इनकरेक्ट हो गया. देयर इज नो एनर्जी रिलीज्ड और टेकन इन ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज. ओ, देखो एनर्जी रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक, और टेकन इन का मतलब है एंडोथर्मिक. और फिजिकल चेंज तुमने मुझसे पढ़े. बॉइलिंग एक फिजिकल चेंज है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. मेल्टिंग एक फिजिकल चेंज है. सब्लिमेशन एक फिजिकल चेंज है. ये तीनों एंडोथर्मिक होते हैं, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. फ्रीजिंग आपने मुझसे पढ़ा है, एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होती है. कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होती है. सही है ना. डी सब्लिमेशन भी कह सकते हो, एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होती है. तो इसका मतलब वो जो कह रहे हैं देयर इज नो 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 एनर्जी रिलीज और टेकन इन, ये गलत है. नो तो नहीं होता. रिएक्शंस हैं उसमें पॉसिबिलिटी होती है, तो ये भी गलत, ये भी गलत. राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 kind of a tricky question because मैंने ऐसा क्वेश्चन इससे पहले कभी देखा नहीं है. And that's the best part कि हमें ये क्वेश्चन करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. गैस P डिकम्पोजेस टू फॉर्म गैस Q. ओके, ये जो X है और ये जो Y है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. Two experiments are done to investigate the rate of reaction. The conditions are the same except that two different temperatures T1 and T2 are used. The results are plotted on the graph drawn to the same scale. आप नोट करें ये वॉल्यूम y एक्सिस पे है, यहाँ भी वॉल्यूम y एक्सिस पे, टाइम x एक्सिस पे, यहाँ भी टाइम x एक्सिस पे. तो दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो सेम जगहों पे लिए हुए हैं. आप नोट करें ये T1 है, ये T2 है, और इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम लेवल के ऊपर है. रिएक्टेंट भी सेम लेवल पे कंज्यूम हो रहे हैं. ठीक है. फर्क थोड़ा सा है टेंजेंट का. ठीक है ना, जो मुझे लग रहा है आप नोट कीजिए, ये ज्यादा स्टीपर है,
और आप नोट करेंगे लेस स्टीपर है, तो जब लेस स्टीपर होता है तो स्लो रेट होता है, और जब मोर स्टीपर होता है फास्टर रेट होता है। रेट फास्टर उस वक्त होता है जब हाई टेम्परेचर होगा, स्लो रेट उस वक्त होता है जब लो टेम्परेचर होगा। दैट इंडिकेट्स कि T2 has a low temperature while T1 has a high temperature. So T1 is higher than T2। ये कहाँ लिखा है? ये स्टेटमेंट यहाँ भी लिखा है, ये स्टेटमेंट यहाँ भी लिखा है। ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत, तो इसका मतलब ऑप्शन बी एंड डी ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड सी। आप नोट कीजिएगा कि यहां से लेकर यहां तक जो लाइन है ये ज्यादा है, और यहां से लेकर यहां तक जो लाइन है वो कम है, ठीक है। जबकि यहाँ पर मोर लेस तकरीबन सेम सेम ही है, ठीक है ना। तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इसमें मोलर रेशो डिफरेंट है, इसमें मोलर रेशो ऑलमोस्ट सेम है। बट हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव करके दे देते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास P है और ये कन्वर्ट हो रहा है Q में, ठीक है। बहुत समझदारी से सुनिएगा बात, कि मुश्किल है इंफॉर्मेशन, ठीक है, आसान नहीं है। आपके पास ये है, लेट सपोज ये 2 और y दिया हुआ है ना एग्जामिनर ने आपको। ये हम सबसे पहले इसको देखते हैं क्योंकि हमें A और C में कंपटीशन करना है ना, A और C। सो A और C को देखते हैं। लेट सपोज ये 2 मोल है और ये 3 मोल है, यानी मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 2 ली है और y की वैल्यू जो है वो 3 ली है, ठीक है। मान लो, अच्छा ये मोल्स हैं, ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए कि ये 1 मोल एग्जामिनर ने लिया होता, तो ये कितना होता? तो भाई ये 3 को मैं डिवाइड करता 2 से, तो मेरे पास 1.5 मोल आ जाता। यानी प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा रिएक्टेंट के अमाउंट से, है ना भाई। इससे तो कंक्लूजन यही मिला ना कि प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट की वैल्यू। तो आप नोट करें ये प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है इस रिएक्टेंट की वैल्यू से। इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब आप बोलेंगे कि सर इसको भी चेक कर लीजिए सी को, कि सी में क्या हो रहा है। तो सी के लिए भी वर्किंग कर लेते हैं, चले यहाँ वर्किंग करते हैं सी के लिए। जनाब ये पी जो है ये कन्वर्ट हो रहा है आपको क्यू में। मान लीजिए कि ये 3 मोल है और ये 2 मोल है एज पर एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन इन ऑप्शन सी। यानी मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 3 ले रहा हूँ और मैं वाई की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 मोल ले लूँ लेट सपोज पी, सो बताइए क्यू मेरे पास कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 कितना होता है? 2/3 होता है 0.66। 0.66 मोल। इसका मतलब ये जो मोल्स हैं क्यू के ये कम हैं और पी के जो मोल्स हैं वो ज्यादा हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती तो फिर जाहिर सी बात है ये बड़ा होता स्केच और ये छोटा होता, राइट। बट यहाँ पर देखें, यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। Samples of nitrogen and hydrogen are reacted and allowed to reach equilibrium. The equilibrium is shown, the temperature is increased, and a new equilibrium is established. Which statement about the new equilibrium is correct? ओके जनाब, अब न्यू इक्विलिब्रियम के लिए बात करनी है हमने। द अमाउंट, अच्छा रिएक्शन जो है ना वो याद रखिएगा आप, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम होगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इनफैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस whereas amount of reactant increases because equilibrium favors towards left hand side। तो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, ये बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।
जब न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल होते हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन, ये भी गलत, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो जाहिर सी बात है न्यू इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो चुके होंगे, which means B is going to be the right answer. Question number 19. In the diagram, R represents one of the reactions in the contact process. Which statement is correct? Okay. Gas Z जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है R बनता है और ये R प्रोडक्ट बना लेता है। अब हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन हो जाता है, नाइट्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन हो जाता है, और यकीनन वो ओ माय गॉड इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड फिर प्रोडक्ट बनाता है, एंड दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली द सल्फ्यूरिक एसिड। सही, एग्जामिनर वाज टॉकिंग अबाउट। तो जी गैस जी इज सल्फर डाइऑक्साइड, ये बात तो ठीक है। और आयरन कैटलिस्ट नहीं होता, V2O5 इसमें कैटलिस्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन आर द प्रेजेंस इज अप्रोक्सीमेटली प्रेशर 200 नहीं होता, प्रेशर 280 m होता है, ये भी गलत हो गया। तो इन आर द टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 45, ये भी गलत। टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। दैट्स एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20. पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन रिएक्ट्स विद आयरन 2 आयंस। ओके, ये इक्वेशन है। That's interesting. The only elements that are either oxidized or reduced in this reaction are sulfur and iron. Which row is correct? Only elements, यानी मुझे आयरन और सल्फर को देखना है। अच्छा, पहली तो बात ये कि देखें यहाँ पर आयरन 2 प्लस है और यहाँ पर आयरन 3 प्लस है। सो टेक्निकली आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करते हैं। सल्फर को 2x लीजिए, ऑक्सीजन का चार्ज इज -2, 8 ऑक्सीजन एटम है इंटू 8, होल चार्ज इक्वल्स टू -2, then 2x equals to 14 and then x equals to 7 plus 7 I believe, plus 7। जबकि सल्फेट आइंस के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको क्लास में कैलकुलेट करके दी है +6। तो ये +7 से +6 जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब सल्फर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ये भी गलत, ये भी गलत। बिहेवियर ऑफ पर ऑक्सीडाइज सल्फेट आयन, भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, याद रखिएगा आयरन 2 आयंस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आप इस तरह से भी तो देखिए ना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयरन 2 को ऑक्सीडाइज करके आयरन 3 में कन्वर्ट कर रहा है और खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट आयंस में। दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। 21. Which solid reacts with dilute hydrochloric acid to produce a gas? Solid. Okay. Carbon cannot react with acid. कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है, कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड। आप बताइए, लेस रिएक्टिव है। कांट रिएक्ट। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा, ऑब्वियसली इट विल टर्न टू मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। ये भी गलत, यहाँ से ऑक्सीजन गैस, यहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रही। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। और डी इसलिए ठीक है क्योंकि जब आप सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ,
तो ये कन्वर्ट होता है सोडियम क्लोराइड में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। सो यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, which is why D is going to be the right answer. Next is when 1 mole per dm cube aqueous solution has the highest pH. बेटा highest pH का मतलब solution is alkaline. तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, उसकी पीएच 7 होती है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली सी, क्योंकि ये एल्कलाइन सोल्यूशन होता है और इसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। पीएच ग्रेटर देन 7, ठीक है। नेक्स्ट इज oxide Q reacts with separate samples of dilute hydrochloric acid and aqueous potassium hydroxide. ओके, ऑक्साइड Q हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन कर रहा है। तो जब एक ऑक्साइड एसिड एल्कली दोनों से रिएक्शन करता है, इसका मतलब वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सो अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गाइस। The table below 4 methods used to prepare pure salts. Oh my goodness, acid plus carbonate, कॉपर टू सल्फेट भी बन सकता है। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड लूं तो सोडियम सल्फेट बन सकता है। अगर मैं पोटेशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूं तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड लूं तो पोटेशियम सल्फेट भी बन जाएगा। तो यह चारों तो बन सकते हैं। माय गुडनेस, दैट्स अ वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बाय द वे कॉपर नहीं बन सकता क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। बाय द वे सोडियम क्लोराइड भी नहीं बन सकता क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। नॉट अ सेफ मेटल। बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एक्सप्लोड कर जाता है रिएक्शन। इसलिए हम सोडियम को एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कराते। सो एक एक ऑप्शन तो पता चल गया हमें कि बी गलत है, क्योंकि जब ये गलत हो गया ऑप्शन तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया। और आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू होगा। ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू नहीं होगा। ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू नहीं होगा। ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू होगा। इसका मतलब बी तो वैसे ही गलत हो गया था, लेकिन अब क्योंकि ये ऑप्शन भी गलत हो गया है, कॉपर टू सल्फेट थ्रू प्रेसिपिटेशन, इसलिए सी भी गलत हो गया है। टाइट्रेशन, कॉपर टू सल्फेट टाइट्रेशन के थ्रू नहीं बनाते। सिल्वर क्लोराइड भी टाइट्रेशन के थ्रू नहीं बनाते। टाइट्रेशन के थ्रू सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब ये भी गलत हो गया है और ये भी गलत हो गया तो डी भी गलत। राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए, क्योंकि इसमें सारे ठीक हैं। मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, ठीक है। और ये मैंने सारे रिएक्शंस कराए मैं आपको क्लास में, ठीक है। Which property determines the order of the elements in the periodic table? The masses of their atom. नहीं जी, किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मैंने क्लास में बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। एंड एटॉमिक नंबर इज बेसिकली number of protons and number of electrons.
सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये गलत। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी गलत। राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। Number of protons present in the nucleus is basically the proton number, also called atomic number. Which statement explains why helium and neon are unreactive? Unreactive का मतलब है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। Can't lose or gain electron. They are both gases at room temperature and pressure. बात तो सही है, दोनों गैसेस हैं, लेकिन अनरिएक्टिविटी का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए गलत। They both have, both, ये गलत। 8 electrons, they both have 8 electrons, both नहीं, only neon have 8 electrons in the outer shell. हीलियम के तो होते ही 2 electrons हैं, उसके पास वैलेंस शेल में 8 electrons हो ही नहीं सकते। They both have equal number of protons and electrons in their atom. Again ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन it has nothing to do with the reactivity. They both have all their occupied electron shells completely filled. ये बिल्कुल सही बात है, which is why D is going to be the right answer. नोबल गैसेस अनरिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, और वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनके जो ऑक्यूपाइड शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। सही है, कोई डुप्लेट फॉलो करता है, कोई ऑक्टेट। सो डी इज द राइट आंसर फॉर 26। 27, substance X conducts electricity in the solid state. Substance X is malleable. तो अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये ग्रेफाइट भी हो सकता है, ये कोई मेटल भी हो सकता है, क्योंकि मैलिएबल है, तो ये ग्रेफाइट नहीं हुआ, फिर इसका मतलब ये मेटल हुआ। ओके, दिस सब्सटेंस एक्स मस्ट बी अ मेटल। सही है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो मेटल्स डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। भाई हमारे घर में जितनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, क्योंकि मेटल्स सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, और मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल आल्सो। तो इसका मतलब ये मेटल की प्रॉपर्टी है। तो एक्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात बिल्कुल सही है। बिटवीन लेयर्स ऑफ नेगेटिव आयंस, ये बात गलत हो गई है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन लेयर्स, ये सही है। लेयर्स ऑफ नेगेटिव आयंस, भाई ये नेगेटिव आयंस नहीं होते, ये टेक्निकली पॉजिटिव आयंस होता है। उसके बाद है आपके पास एक्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस थ्रू अ जॉइंट लैटिस। मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस नहीं होता, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, व्हिच इज व्हाई ये भी गलत, भी गलत। X has a giant lattice of positive ion in a sea of delocalized electrons. That's what we have done in the class. So C is going to be the right answer. That's a very straightforward question. Okay. Aluminum and copper are good conductors of electricity. बिल्कुल सही बात है, ये दोनों metals हैं, electricity conduct करेंगे. Why is aluminum used in overhead electrical cables instead of copper? इसकी सबसे बेसिक रीजन तो ये थी कि जनाब एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी, नहीं, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी तो ज्यादा होती है लेकिन एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होती है। अच्छा, ये पॉइंट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम इज अबव कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये बात बिल्कुल सही है, बट ये बात इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, व्हिच मींस ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इसलिए ए रॉन्ग हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज लेस डेंस देन कॉपर, जाहिर सी बात है, इसलिए हम ओवरहेड केबल्स के लिए यूज करते हैं इसको। सो दिस माइट बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर डज नॉट हैव एन ऑक्साइड कोटिंग। कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर, कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। कॉपर डज नॉट हैव एन ऑक्साइड कोटिंग, ये भी गलत। राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होती है, ओवरहेड केबल्स के लिए आप उसको कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं, प्लस उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। तो ऑक्साइड ऑफ जी इज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कार्बन। सो कार्बन के साथ अगर हीटिंग कर रहे हैं आप, इसका मतलब लेस रिएक्टिव है वो। तो पहली बात तो ये कि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करते हैं, कैल्शियम की एक्सट्रैक्शन भी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करते हैं, मैग्नीशियम की एक्सट्रैक्शन भी हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करते हैं, क्योंकि ये तीनों की तीनों मेटल्स रिएक्टिव है। मेटल्स आर रिएक्टिव, एक्सट्रैक्शन
can be done through electrolysis. सही है, तो ए बी सी रॉन्ग, राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। और मैंने क्लास में बताया आपको कि जिंक ऑक्साइड अगर आपके पास है और आप उसको कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में और जिंक में। ठीक है, तो ये रिडक्शन पॉसिबल होती है। नेक्स्ट इज अ मेटल ओर कंटेन्स एन ऑक्साइड MO। तो पहली बात याद रखिएगा कि हम एक मेटल ओर यूज कर रहे हैं। मेटल ओर जब यूज करते हैं तो उसका एक ऑक्साइड है, मेटल एम्स फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स। इसका मतलब मेटल एम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं, इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई डेंसिटी आल्सो। सो डेंसिटी ऑफ एम इज हाई, लो गलत है, इसका मतलब डी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, when a piece of iron is placed into a solution containing aqueous M2 ions, M is displaced. That indicates that M is less reactive than iron. ठीक है, अब M से नीचे कौन कौन से मेटल्स हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आते हैं, अगर आपको याद हो? लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, मर्करी है, गोल्ड है। ठीक है, ये है। सो ये आएंगे, इनमें से कोई ये होगा एक। एंड ऑब्वियसली अगर इनमें से कोई एक है जिसको आयरन डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका मतलब उसकी एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू तो नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू नहीं होगी, इसके थ्रू तो हो जाएगी कार्बन के थ्रू, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू नहीं होगी। सो हीटिंग विद कार्बन ओनली, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन डी गलत है क्योंकि डेंसिटी कम नहीं होती, ज्यादा होती है, इसलिए डी तो गलत हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रोलिसिस और हीटिंग विद कार्बन, अगर सिर्फ हीटिंग विद कार्बन होता मैं मान लेता। आप जानते हैं कि कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस, कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते, कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं। अगर मैं कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लूं, कॉपर का कैथोड लूं, कॉपर का एनोड लूं, तो मुझे कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? कॉपर एक्सट्रैक्ट हो सकता है। सो इट्स अ वेरी वेग स्टेटमेंट, ये मेरी नजर में बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि इस पे दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी एक्सट्रैक्ट हो सकता है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये जो है रिड्यूस भी हो सकते हैं कार्बन के साथ। तो इट्स अ वेरी वेग सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट, बट ये बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है। सो मुझे लगता है कि सी, मेरे परस्पेक्टिव से सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बट ऑब्वियसली मार्किंग स्कीम में शायद बी दिया हुआ है एग्जामिनर ने। मार्किंग स्कीम सेट कि बी इज द राइट आंसर, और मेरे ख्याल से वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉपर की जो इलेक्ट्रोलिसिस एक्सट्रैक्शन होती है वो हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी करते हैं ना। यानी एनोड जो है वो कॉपर का बना लो, कैथोड जो है वो भी कॉपर का लिख लो, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी कॉपर सल्फेट का होना चाहिए। सही, तो इन दैट केस कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक है ये वाला स्टेटमेंट। लेकिन हीटिंग विद कार्बन थोड़ा सा मुझे ऑड फील हो रहा है भाई, ये कार्बन के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। चले, मैं फिर सी को देख लेता हूँ, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बट मेरी मेरी नजर में ये ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, मेरी नजर में सी इज मोर एक्यूरेट देन बी।
ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा भाई सी। इज मोर अप्रोप्रिएट देन बी। ये मैंने लिख के दे दिया। ठीक है, और मेरी रीजन ये है कि भाई ये तमाम लेस रिएक्टिव है आयरन से, ये तमाम कार्बन के साथ रिड्यूस हो सकते हैं इनके ऑक्साइड्स, जो कि बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन सिल्वर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी नहीं ले सकता हूँ, मर्करी नहीं ले सकता हूँ, गोल्ड नेचुरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस वाली बात जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर, which is why मेरी नजर में C ज्यादा एक्यूरेट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 31। आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर हेमाटाइट। ओके, हेमाटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो Fe2O3 है, और हम आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आयरन हम 2 ले लेते हैं यहाँ पर क्योंकि 2 मोल्स हैं। Fe2O3 का एमआर हमें निकालना है, तो 56 टाइम्स 2 प्लस 16 टाइम्स 3 इज गोइंग टू बी 160, और आयरन जो है वो 56 टाइम्स 2 है, तो ये हो जाएगा 112। तो अगर आपके पास 500 ग्राम है ये, आई मीन 500 किलोग्राम है ये, तो बताइए ये कितना होगा। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 160, ये मैंने शॉर्टकट ले लिया है, और 500 इंटू 116 डिवाइडेड बाय, तो 112 divided by 160, so it's going to be 350 किलोग्राम। कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, जो भी आंसर आया उसको केजी में कर दीजिए। सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। दैट्स अ वेरी शॉर्टकट टेक्निक, डिस्कस किए मैंने ये शॉर्टकट टेक्निक भी क्लास में आप लोगों के साथ। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 32, which row describe an advantage and a disadvantage of fertilizer। फर्टिलाइजर का एडवांटेज ये है कि वो प्लांट्स की ग्रोथ और उनकी जो वो होती है, प्लांट्स की ग्रोथ को इंप्रूव कर देता है, दैट्स फाइन। डी ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर, नहीं, डी ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर तो नहीं करता, ये तो एडवांटेज नहीं है, तो डी डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, वाटर में डेफिशिएंसी कर देता है यूट्रोफिकेशन की वजह से फर्टिलाइजर, सो दैट्स द डिसएडवांटेज। एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द एडवांटेज, व्हिच इज व्हाई मैंने ए और बी को रॉन्ग कर लिया यहाँ पर। ठीक है, कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन सी एंड डी। डिसएडवांटेज क्या है? डैमेज, डैमेज टू एक्वाटिक लाइफ, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। Question number 33. Which row about the adverse effect of air pollutants is correct? Methane increased global warming. ठीक है. Oxides of nitrogen, respiratory problems, causes acid rain, increased global warming. ये बिल्कुल सही बात है. Particulates यानी जिसको आप फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हो, तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, एसिड रेन, सॉरी कैंसर कॉजिंग होता है। ठीक है, सो एसिड रेन नहीं करता, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी उसके थ्रू होती हैं। अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैंसर कॉज नहीं करते। ठीक है, ये याद रखिएगा। मीथेन जो है वो कैंसर कॉज नहीं करती, क्योंकि मीथेन तो हमारे घर में भी आती है जिससे हम खाना बनाते हैं। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होती हमें मीथेन को यूज करने से, घर में हम खाना बनाते हैं उसके थ्रू, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इसका मतलब राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। How many different unbranched esters have the molecular formula C4H8O2? अच्छा जी, एस्टर्स हैं, ये याद रखिएगा। सो एस्टर्स के लिए मैंने 2 फॉर्मूले दिए थे आपको, कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हो, और हो सकता है कि ये दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हों, डिफरेंट भी हों। एक और भी एस्टर का मैंने फॉर्मूला दिया था जिसमें एक तरफ H हो और एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो। तो मुझे इन दोनों को जहन में रख के इसके पॉसिबल डिफरेंट अनब्रांच्ड एस्टर्स के स्ट्रक्चर्स बनाने। चलो बनाते हैं। CH3, CH2, COO, CH3, ये हमारा फर्स्ट हो गया। हमारा सेकंड देखो, ये CH3 एज इट इज, ये CO हो गया, ये ऑक्सीजन, ये CH2, ये CH3। क्या किया भाई मैंने किया ये है कि वाला CH2 यहाँ शिफ्ट कर दिया,
ये CH2CH3 आ गया, बाकी अपनी जगह पे एज इट इज रहे। सही, ये तो दो बन गए। और देखो ये दोनों के दोनों क्या अल्काइल ग्रुप्स हैं, और दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट। अब इस वाले के थ्रू भी बना के देखते हैं। एक तरफ H और एक तरफ R, 4 कार्बन एटम्स लेने हैं हमने। तो ये हमने 4 कार्बन एटम्स लिए, CH3 CH2 CH2C। तो ये आपके पास टोटल 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C, 34C। 35, petroleum is separated in a fractionating column. Which statements are correct? The compounds at the top of the column are more volatile. ये बात बिल्कुल सही है। And have a lower boiling point. ये बात भी बिल्कुल सही है। The first statement is correct. Next, the compounds at the bottom of the columns are more viscous. ये बात बिल्कुल सही है, viscosity ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। The chain length of the molecule at the bottom of the column are shorter than those at the top. अगर more viscous है bottom में, तो जो चेन है वो शॉर्टर नहीं हो सकती, वो लॉन्गर हो। तो ये शॉर्टर नहीं है, ये टेक्निकली लॉन्गर होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एंड देयरफॉर 1 and 2 इज द राइट आंसर। B is going to be the right answer. Okay. Oh my goodness. Which statement about hydrocarbons is correct? Alkenes are unsaturated. ये बात बिल्कुल ठीक है। Which means that they are less soluble in water than alkanes. Yes, solubility has nothing to do with the unsaturation. Okay. ये गलत है। Alkene contain higher percentage by mass of carbon than alkene. अब यार ये तो मैं कोई एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकता हूँ बात। तो एक काम करते हैं, हम इथेन लेते हैं और इथीन लेते हैं, और दोनों में परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन निकालते हैं। सो परसेंटेज इक्वल्स टू 12 टाइम्स 2। ये 12 जो है वो कार्बन का AR है, 2 इसलिए क्योंकि दो एटम्स हैं, डिवाइडेड बाय द MR ऑफ इथीन विच इज 28 into 100। ये हो जाएगा 12 टाइम्स 2 divided by 30. 30 is the MR of ethane into 100. Let me calculate. 24 divided by 28 is going to be 85.7%. 24 divided by 30 is going to be 80%. ये 80% है, ये 85.7%। इसका मतलब एल्कीन में कार्बन जो है वो परसेंटेज बाय मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्केन। सो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, एंड बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके। ट्रैकिंग लार्ज एल्केन प्रोड्यूसेस ओनली स्मॉलर एल्केन्स एंड हाइड्रोजन। नहीं जी, ओनली एल्केन नहीं है, एल्कीन भी तो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो ओनली है ना, ओनली एल्केन्स, स्मॉलर एल्केन्स, ये गलत है, स्मॉलर एल्कीन्स भी देता है भाई, alkenes also. Next, the presence of a double bond in an alkene means that 1 mole of alkene will react with exactly 80 gram of bromine. 80 gram of bromine, that's an incorrect option because bromine का फॉर्मूला होता है Br2। तो अगर मैं 80 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो मुझे 160 मिलेगा। तो 160 ग्राम ऑफ ब्रोमीन इज reacted when 1 mole of alkene is used. So ये मास गलत दिया हुआ, इट हैज टू बी 160। इसका मतलब ये डी भी गलत, सी भी गलत, ए वैसे भी गलत। 37, two statements are shown when ethanol is made from glucose by fermentation. Each glucose molecule produces 2 moles of ethanol. That's true. ये इक्वेशन थी ना। So 2 moles of ethanol मिलता है and 2 moles of carbon dioxide gas रिलीज होती है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। When ethanoic acid is made from ethanol, ethanol acts as a reducing agent. That's also correct. क्योंकि इथेनॉल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये बात मैंने आपको लिखवाई है नोट्स में। तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है आपने। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट।
So A is going to be the right answer for 37. 38. In a titration 25 cm cube sample of 0.1 mole per dm cube NaOH is exactly neutralized by 16.2 cm cube of dilute sulfuric acid. I know the concentration, I know the volume, so I can find the moles of NaOH first. So 1000 cm cube contain 0.1 mole of NaOH, और अगर 25 cm cube है तो बताइए मोल्स कितने होंगे? तो आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी 2.5 into 10 to the power minus 3 moles of NaOH. Let me confirm. 25 into 0.1 by 0.1 divided by 1000, so it's going to be 2.5, right? Now according to the equation, H2SO4 is a dibasic acid, which is why NaOH और H2SO4 का molar ratio है 1:2 respectively. I mean 1:2 between NaOH and this. अगर आपने ये 2.5 into 10 to the power minus 3 moles calculate किए तो moles of H2SO4 क्या हो जाएगा आपके पास? Divided by 2, 1.25 into 10 to the power minus 3 moles. ये जो मोल्स आपने निकाले हैं ये टेक्निकली 16.2 cm क्यूब के अंदर है. कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 cm क्यूब से कंपेयर करेंगे. तो ये जगह 0.0711 मोल पर dm क्यूब. The right answer is going to be B. That's the concentration of sulfuric acid. सही है, ये moles of sulfuric acid है, आप यहां लिख सकते हैं. Okay. Question number 39. Three liquids X, Y, and Z are tested and the results are shown. Add anhydrous cobalt to chloride, blue to pink अगर हो रहा है और X का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो इसका मतलब ये वाटर होगा. ब्लू टू पिंक है लेकिन ये 103 है तो इसका मतलब ये प्योर वाटर है क्योंकि फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, और ये इम्प्योर वाटर है क्योंकि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पे हो रहा है. सही है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये वाटर नहीं है, लेकिन मैं बॉइलिंग पॉइंट को देख रहा हूं और उससे मुझे अंदाजा हो गया कि ये इथेनॉल है, बिकॉज इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है. ये बात मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के चैप्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बताई है, इनफैक्ट डिस्टिलेशन में भी बताई है. सो एक्स इज प्योर वाटर, Y is not water, Z is impure water. So right answer is going to be D. ठीक है. Question number 40, that's the last question. Compound Q is soluble in water. A solution of Q gives white precipitate when dilute sulfuric acid is added. So Q को आप टेक्निकली रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से और आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं. सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं आप, इसका मतलब आप सल्फेट आयंस ऐड कर रहे हैं टेक्निकली. तो इसका मतलब ये जो Q है, दिस Q कंटेन बैरियम आयंस, क्योंकि ये बैरियम इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बना लेगा. आगे चलते हैं. When Q is warmed with aqueous sodium hydroxide and aluminum foil, a gas is produced which turns damp red newspaper blue. तो पहली तो बात ये कि जब एल्यूमिनियम फॉयल का ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, then this test confirms
ammonia gas is given off. और जब अमोनिया गैस रिलीज हो रही है तो इसका मतलब ये नाइट्रेट आयंस है. सो नाइट्रेट आयंस यहाँ पर है, नाइट्रेट आयंस यहाँ पर है, बेरियम यहाँ पर है, बेरियम यहाँ पर है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑब्वियसली. So D is going to be the right answer. Thank you very much.